Next student, today we shall read again the last leaf, lesson number 7 from your book Moment. And this lesson can be the message to you that you should be optimistic in life, always be positive, and positivity must bring you success. Two friends live in the same flat. Johnsy Godil and Sue helped her getting well. She helped her a lot. Johnsy become disappointed because of the illness. She lose heart, and Sue, her friend, tried to console her, did her best to motivate her. So let's see. Until then, we have read that Sue tried her best and drew a painting, and she expressed her worries before another artist named Brahmin. He was 16 years old. He was a good painter. He had dreams to paint a masterpiece. His dream was still unfulfilled. And when she tells Brahmin about the condition of Johnsy, he assured her to see Johnsy. So let's resume the topic from here. I will come with you and see Johnsy, said Brahmin. Brahmin ने कहा मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और देखता हूँ Johnsy को. They tiptoed into the room. Tiptoe चुपके से उस रूम में वो एंट्री की उन्होंने पंजों के बल. Tiptoe जो तो अंगूठे के बल जो धीरे धीरे से quietly. Johnsy was sleeping. Johnsy सो रही थी. Sue drew the curtains together and they went the next room. Sue ने कर्टेन को हटाया और अगले रूम में दोनों एंट्री कर जाते हैं. She peeped out through the window. विंडो से बाहर से झाँक के देखा. क्या? There was only one leaf on the ivy creeper. Ivy creeper के ऊपर एक पत्ता बचा था. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. भारी बारिश और बर्फीली हवा चल रही थी तेजी के साथ. एक पत्ता बचा हुआ था. It seemed as though the last leaf would fall any minute now. ऐसा लगा मानो किसी भी क्षण आखिरी पत्ता गिर सकता है. Brahmin did not say a word. Brahmin ने कुछ भी नहीं कहा. He went back to his room. अपने रूम में वापस गया. Johnsy woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtain. सुबह उठी. अपनी फ्रेंड से जॉन्सी ने रिक्वेस्ट किया कि कर्टेन हटाओ. She was nervous. घबराई हुई थी. She drew back the curtains very reluctantly. Reluctantly होता है unwillingly. Unwillingly Sue ने कर्टेन हटाया, पर्दा हटाया. अनिच्छा से. Oh, Sue exclaimed as she looked at one creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. जो ही Sue ने देखा कि एक पत्ता बचा हुआ था, अपने फ्रेंड्स को कहा देखो एक ही पत्ता यहाँ पे शेष है, बचा हुआ है, रिमेनिंग है. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. एक ही पत्ता बचा हुआ है और ये भी एक बिल्कुल हेल्दी ग्रीन है. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायरस विंड इट डिडंट फॉल. भारी तेज हवा चलने के कारण, तूफान के बावजूद भी ये पत्ता नहीं गिरा. इट डिडंट फॉल, ये गिरता नहीं. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट. मैंने पिछली रात को आवाज़ें सुनी जोर जोर से कि हवा तेज चल रही थी उसकी. सेड जॉन्सी ने कहा. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन. मैंने सोचा ये पत्ता गिर चुका होगा. इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई. और आज ये पक्का गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगा. यू वॉन्ट डाई. तुम नहीं मरोगी. सेड शू एनर्जेटिकली. शू ने जोश में कहा कि तुम नहीं मरोगी. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स. तुम्हें अपने मित्र के लिए जीना है, रहना है. What would happen to me if you die? अगर तुम मर गई तो मेरे साथ क्या होगा. You won't die. तुम नहीं मरोगी. said Sue. Sue ने कहा. Johnsy smiled weakly and closed her eyes. Johnsy ने अपनी आंखें बंद की और कमजोरी के साथ हंसी उसकी तरफ. After every hour or so she would look out of the window. हर घंटे Sue इतनी कनेक्टेड थी पत्तों के साथ, अपनी लाइफ को कनेक्ट किया था. हर घंटे उस आईवी क्रेपर के पत्तों की तरफ नज़र डालती एंड फाइंड
द लीफ स्टिल देयर, और पत्तों को जो पत्ता था फिर उसको वही उसको मिलता था लास्ट लीफ। इट seemed टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, और ऐसा लगा मानो वो चिपका हुआ हो क्रीपर के साथ। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Jonesy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Shoo. एक और तूफान आया अगली शाम को, लेकिन पत्ता फिर भी नहीं गिरा, और जोन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेटी रही, लुकिंग एट द लीफ, पत्ते की तरफ देखती हुई। Then she called out to Shoo, फिर उसने शू को बुलाया, कहा I have been a bad girl, मैं बहुत बुरी लड़की रही हूँ। You have looked after me so lovingly, तुमने मेरी देखभाल बड़े अच्छे से की है। I have been depressed, I have not cooperated with you, और मैंने तुम्हारा कोऑपरेट नहीं किया, सहयोग नहीं किया। I have been depressed and gloomy, मैं डिप्रेशन में थी, तनाव में थी, और दुख में थी, पीड़ा में थी, उदासी में थी। The last leaf has shown me how wicked I have been, और आखिरी पत्ते ने मुझे दिखा दिया कि मैं एक बहुत बुरी लड़की रही हूँ। I have realized that it is a sin to want to die, और इसने मुझे महसूस करा दिया कि मरने की इच्छा करना बहुत बड़ा पाप होता है। शू हग जोन्सी, जोन्सी को शू ने हग किया। Then she gave her a lot of hot सूप, फिर उसने उसको गर्मा गर्म सूप दिया। एंड ए मिरर, और एक शीशा दिया अपना फेस देखने के लिए, दर्पण दिया। जोन्सी कम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जोन्सी ने अपने बालों को कंघी किया और ब्राइटली खुशी के साथ वो स्माइलिंग दी। इन द आफ्टरनून डॉक्टर केम, आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड शू जोन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव। फिर डॉक्टर आता है और डॉक्टर ने कहा कि अब जोन्सी ठीक हो रही, उसकी इच्छा है जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मुझे भरोसा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर, और मैं अब नीचे जा रहा हूँ। एंड सी ब्रह्मन, ब्रह्मन को देखूंगा, वो जो पेंटर था 60 ईयर्स ओल्ड। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसको भी निमोनिया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे भय है कि उसकी उम्मीदें कम हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट ऑन जोन्सिस बेड, टेकिंग जोन्सिस हैंड इन हर, शी सेड। अगली सुबह शू जोन्सी के पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मिस्टर ब्रह्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, ब्रह्मन निमोनिया से मर गया आज सुबह। ही वॉज ill for only 2 days, 2 दिन ही बीमार रहा वो। The first day the janitor found him on his bed, जो गेट कीपर है उसने उसको, जैनिटर को वो मिला, found him on the bed, his clothes and shoes were wet, उसके कपड़े गीले थे, and he was shivering, और वो काँप रहा था। He had been out in that stormy night, और वो तूफानी रात में पूरी रात बाहर था। Then they found a ladder, फिर उनको एक सीढ़ी मिली, and a lantern still lighted lying near his bed, और एक लालटेन मिली, एक सीढ़ी मिली, और उसके कुछ कलर्ड मिले जो अभी भी वहाँ पे पड़े हुए थे उसके बेड के पास। There were also some brushes, और ब्रशेस थे पेंट करने के लिए जो होते हैं, and green and yellow paint on the floor, और फ्लोर पे कुछ ग्रीन फ्लोर का पेंट था वहाँ पे। Near the ladder, लेडर के पास। जोन्सी डियर सेड शू, शू ने कहा जोन्सी प्रिय, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर तुम देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी क्रीपर का लीफ पत्ता देखो। हैवंट यू वंडर व्हाई इट डजंट फ्लटर, क्या तुम्हें हैरानी नहीं वो फड़फड़ाता नहीं, फ्लटरिंग नहीं करता। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, तुम्हें इस पे आश्चर्य नहीं हुआ। दैट्स ब्रह्मन्स मास्टरपीस, और ये ब्रह्मन जो कि 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर था, उसकी मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उसने उस रात उसको बनाया जब ये आखिरी पत्ता गिरा, तो ब्रह्मन ने इसे पेंट किया। और ये ब्रह्मन का जो अनफुलफिल्ड ड्रीम था
ये उत्कृष्ट कला थी, उसकी एक मास्टरपीस थी। जॉन सी डियर, तुमने इसके फड़फड़ाहट को चेक नहीं किया। So student, I hope you enjoyed this lesson very well, and this lesson clearly convey the message, send the message to the student that optimism and hard work is the weapon for anyone to survive in life. So life में कभी hopeless नहीं होना। hostile condition, circumstances create होते हैं, लेकिन आपको पीस मेंटेन करना है, मेहनत करनी है और भगवान का नाम लेके आगे बढ़ना है। इसी मैसेज के साथ जीवन में कभी नहीं घबराएं, आगे बढ़ते चले जाएं, मेहनत करें, प्रभु में विश्वास रखें। आप सभी स्टूडेंट को कोटि कोटि आशीर्वाद, अनेक शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।